So first of all, good evening everyone, like those who arrived late and those who are wishing since early. In the last lecture, we studied about quartiles, deciles and percentiles, also median. We understood both type of data, whether we talk about ungrouped or discrete, or I talk about continuous or grouped. Correct, we understood each and every formula really very well. We did dealt with few sums on median. So now we are going to do couple of sums on your quartiles, percentiles and deciles. Correct. So we'll begin with those sums and then gradually we will increase the level. Okay, so here is your sum number 31. Everybody is able to view sum number 31. Sum number 31, is it visible to everyone? Okay. तो कोई भी क्वार्टाइल के सम को सॉल्व करने से पहले we need to arrange the data in dash order. Before solving any quartile sum, we need to arrange the data in dash order. Correct? तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है. There the marks of 19 students are given to you. Correct? बोला है calculate all the quartiles. All the quartiles मतलब कितने quartiles? 3, right? Q1, Q2 and Q3. तो अब आपको पहले तो इस पूरे डेटा को किस में अरेंज करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, फर्स्ट यू नीड टू अरेंज दिस एंटायर डेटा इन दी असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो कौन बताएगा मुझे डेटा असेंडिंग ऑर्डर में वॉलेंटरीली? जो सबसे पहले का है. यू नीड टू गिव मी दी डेटा इन दी असेंडिंग ऑर्डर. किसको आता है असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लिखना? एनीवन? अच्छा, असेंडिंग का मतलब मैं बता दूं. असेंडिंग का मतलब इस पूरे डेटा में से सबसे पहले आपको सबसे छोटी वैल्यू लेनी है. ठीक है, और उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू एंड सो ऑन. ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है इसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो आई थिंक कि किसी को भी नहीं आता है तो मैं खुद ही लिख देता हूँ. नो बडी इज आंसरिंग कि कौन असेंडिंग ऑर्डर में आंसर देगा. सो असेंडिंग ऑर्डर में आपको सिखाता हूँ. लेट अस गो बैक टू चाइल्डहुड. बचपन में जाते हैं हम लोग. असेंडिंग ऑर्डर में 19 ऑब्जर्वेशन है आपके पास. सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन आ रहा है 21. 21 के बाद आ रहा है 23. 23 के बाद 25, देन 26, देन 27, 27, then 28, 29. Very good, Harsh. Then again 29, then 30, then 31, then again 31, then 35, फिर से 35, 38, 38 के बाद ओके 41, then 42, then 45, and then finally 47 and 50. Okay, so those who don't know ascending order, I think अभी उनको पता चल गया होगा. सिर्फ हर्ष को आता है ascending order बताना. Others I think are sleeping. कोई इशू नहीं. Let us begin. Okay, all the quartiles. What will be the formula for first quartile? Anyone? What is the formula for first quartile? Q1 क्या होता है? Q1 is value of n plus 1 by fourth observation. N plus 1 by fourth observation.
n का वैल्यू तो करने की जरूरत ही नहीं है, इट इज गिवन, इट इज व्हाट 19. सो दिस विल बी वैल्यू ऑफ 19 plus 1 by 4, 20 by 4. So 20 by 4 will be 5. So Q1 is value of fifth observation. So fifth observation जो आपने ascending order में अभी अभी अरेंज किया है उसमें देखते हैं 1 2 3 4 5. 27 is our fifth observation. सो Q1 का वैल्यू क्या मिला हमें 27. सो दैट इज द आंसर फॉर Q1. सो क्वार्टाइल 1 इज 27. ओके नेक्स्ट बोला है Q2. Q2 क्वार्टाइल 2. ठीक है, क्वार्टाइल 2 का फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ इन ब्रैकेट 2 times n plus 1 by फोर्थ ऑब्जर्वेशन, जिसका मतलब होगा वैल्यू ऑफ, कैन आई से 2 1s are 2 4s are n plus 1 by सेकेंड ऑब्जर्वेशन, जिसका मीनिंग होगा वैल्यू ऑफ 19 plus 1 by 2 ऑब्जर्वेशन. तो 20/2 कितना आ जाएगा 10. वैल्यू ऑफ 10th ऑब्जर्वेशन. तो Q2 करेक्ट 10, ये क्या था 5 था राइट. 6 7 6 7 8 9 10, it is turning out to be 31. So our correct answer will be 31. So Q2 का आंसर क्या आया 31 आया. ठीक है Q3 करेक्ट. आई गिव यू 2 minutes टाइम, सभी लोग Q3 निकालिए. सभी लोग Q3 खुद से निकालेंगे और मुझे बताएंगे. एवरीबडी प्लीज कैलकुलेट Q3. वैल्यू ऑफ 3 into n plus 1 by fourth observation, that is value of 3 in bracket 19 plus 1 by fourth observation, that is value of 15th observation. 15th observation देखना पड़ेगा क्या आ रहा है 10 11 12 13 14 15. It is turning out to be 41. So Q3 answer is 41. Very good. बहुत लोगों को आंसर्स मिले हैं. अभी एक और चीज़, इनका अल्टरनेटिव नेम भी आपको याद होना चाहिए. Q1 is also called as lower quartile, correct. दूसरी चीज़, it is also called as first quartile. रैंक वगैरह मोहित मैं ऑलरेडी कल बता चुका हूँ, आज दोबारा नहीं बताऊंगा. Q2 is called as second quartile, मिडिल क्वार्टाइल, और एक और नाम है इसका मीडियन. Q3 is called as third quartile, is called as third quartile,
या तो हम इसको क्या कहते हैं, अपर क्वार्टाइल। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स। सो दिस इज योर सम नंबर 31। लेट अस क्विकली मूव फॉर 32। अभी एक बार मैंने असेंडिंग ऑर्डर बताया है, अभी हमें कौन बताएगा? मोहित विश्वकर्मा विल गिव अस द असेंडिंग ऑर्डर फॉर द गिवन सेट ऑफ डेटा। मोहित विश्वकर्मा will give me the ascending order। वही मैं सोचूं, सभी लोग हमें फॉर्मूलाज का आंसर दे रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सुस्ती हो रही है लोगों को। हाँ, तो इसीलिए मैंने मोहित जी को पकड़ लिया। मोहित जी, आर यू रेडी? सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी मोहित? 170। उसके बाद 180। ओके, आफ्टर दैट करेक्ट मोहित। 200। आफ्टर दैट 210। ओके, उसके बाद रॉन्ग मोहित आडवाणी। मोहित आडवाणी रॉन्ग। उसके बाद 220। 220 के बाद 280। 280 के बाद 310। उसके बाद नहीं मोहित, मोहित यार दूसरी बार गलती की मोहित आडवाणी। 320 भी तो है मोहित। 320, उसके बाद 330, आफ्टर दैट 380 एंड देन फाइनली 400। ठीक है, सो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज हो गया है। नाउ वी नीड टू फाइंड Q1, Q2 एंड Q3। अभी इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। SP स्टूडेंट्स शुड बी मोर अटेंटिव। ठीक है, n का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ पर 12 वर्कर्स हैं। ठीक है, सो वी आर फाइंडिंग Q1। Q1 इज वैल्यू ऑफ n+1/4 observation, that is value of 12 plus 1, that is 13th/4 observation, that is value of 13/4 will be 3.25। SP students please ज़्यादा ध्यान देना। It is basically, now we are going to express this in the form of a formula। ऐसे डेसिमल में आए तो क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व कीजिए। we will say it is value of third observation, value of third observation plus 0.25, correct? Value of fourth observation, value of fourth observation minus थर्ड ऑब्जर्वेशन, करेक्ट? एक वैल्यू आगे की माइनस पिछली वैल्यू। ठीक है, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, 190। 190 प्लस 0.25, इट इज 200 माइनस 190, so that is 190 plus 0.25 into 10, so this is going to be 192। ये 2.25 हो जाएगा, yes or no? क्या मैं डायरेक्टली इसे लिख सकता हूँ, इट इज 192.5? एवरीबडी एग्रीज विद दिस?
SP students योगिता, योगिता and others, Mohit Vishwakarma, Atharva. Any doubts to you all? SP students, any doubts? Kishan, Mohit Advani, Anisha. ओके अभी Q2 फाइंड करेंगे. Q2 is nothing but value of 2 times n plus 1 by 4th ऑब्जर्वेशन. तो कितना आ जाएगा? वैल्यू ऑफ 2 इंटू एन कितना है? 12. 12 प्लस 1 13. 13th by 4th ऑब्जर्वेशन. दिस विल बी वैल्यू ऑफ, वैसे तो ये 3.25 था, 3.25 का डबल 6.5 ऑब्जर्वेशन. एसपी स्टूडेंट्स प्लीज मुझे इसकी वैल्यू बताओ. एसपी स्टूडेंट्स लिखकर बताएंगे, लिखकर भेजिए. दिस विल बी वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5. SP students dash minus dash. SP students dash minus dash. 6th के आगे कौन सा ऑब्जर्वेशन आएगा? 7th माइनस 6th ऑब्जर्वेशन. तो 6th ऑब्जर्वेशन देखें, 3 4 5 6, तो 220 आ रहा है. सो इट इज 220 प्लस 0.5. This will be 280 minus 220. Correct. So this will be 220 plus 0.5. It is 60. 60 का आधा होता है 30. So this turns out to be 250. So you got the value of Q2 as 250. SP students, any doubts? सुमित समझ रहा है? सुमित, सुमित. ओके. Q3 क्वार्टाइल 3. ठीक है. दिस विल बी वैल्यू ऑफ, चलो अभी ये सभी लोग ट्राई करो जब तक मैं लिखता हूँ, जब तक मैं लिख रहा हूँ सभी लोग ट्राई करो. दिस विल बी वैल्यू ऑफ 3 इन ब्रैकेट n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन. ठीक है. तो वैसे तो ये 13/4 होता है, तो 13/4 यानी कि 3.5 इन 3.25 इंटू 3, तो दिस विल बी 9.75 ऑब्जर्वेशन. अब मैं इसको शॉर्टकट में लिखूंगा. ठीक है. दिस विल बी वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन. अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ. ठीक है. 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 10th ऑब्जर्वेशन, 10th ऑब्जर्वेशन माइनस 9th ऑब्जर्वेशन. तो 9th ऑब्जर्वेशन कितना है? व्हाट इज 9th ऑब्जर्वेशन? 320 आ रहा है प्लस 0.75. 10th ऑब्जर्वेशन क्या है? 330. 330 माइनस 320 10 आएगा. करेक्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी 327.5 एंड दैट इज माय Q3. Q1, Q2, Q3, any doubts to anyone? ओके. अभी एक हम लोग कंटिन्यूस वाला भी एग्जाम्पल लेना चाहिए. मॉड्यूल में है नहीं, बट आई एम कंसिडरिंग ईच एंड एवरी एग्जाम्पल सो दैट देयर इजंट एनी प्रॉब्लम अहेड. मैं नहीं चाहता कि आगे चल के कुछ भी प्रॉब्लम आए. जब भी हम कंटिन्यूस की बात करते हैं, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? हु कैन टेल मी व्हाट यू विल फाइंड आउट फर्स्ट? n/4. yes or no?
एवरीबडी एग्रीज? n/4 पहले निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? करेक्ट। लेकिन लेकिन इधर देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 200 मेल अडल्ट इन अ फैक्ट्री। करेक्ट। फिर डेटा दिया है आपको, बोले फाइंड दी सेंट्रल हाइट। सेंट्रल हाइट मतलब Q1 होगा, Q2 होगा कि Q3 होगा? सेंट्रल हाइट का मीनिंग वेदर इट इज गोइंग टू बी Q1, Q2 की Q3? एवरीबडी प्लीज आंसर। सेंट्रल हाइट जब ये बोल रहे हैं तो सेंट्रल हाइट का मतलब इट इज Q1, Q2 की Q3? वेरी गुड, इट इज गोइंग टू बी व्हाट? Q2। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप n निकाल लो बेटा। ठीक है, टोटल n निकालना है हमें। मुझे टोटल n बताओ क्या आता है? कैन आई से इट विल बी 200? टोटल n 200 आएगा कि नहीं आएगा? नंबर ऑफ अडल्ट फ्रीक्वेंसी विल इट बी 200 और नॉट? करेक्ट। और हमें सेंट्रल हाइट का मतलब होता है Q2। Q2 के लिए हम क्या पहले फाइंड करेंगे? Q2 के लिए क्या पहले फाइंड करेंगे? 2n/4। 2n/4 मतलब 2 × 200/4, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। डी ऑल एग्री विद दिस? वेरी गुड, काफ़ी लोग आंसर दे रहे हैं। लेकिन 100 तो आ गया, लेकिन मुझे अभी पहले CF निकालना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? Am I audible to everyone? Okay, I am audible to everyone now. Okay, so first I need to find now CF. CF is your cumulative frequency. Correct. तो चलो let's find cumulative frequency. So let's begin finding CF. सबसे पहले इधर तो 4 ही आएगा। 4 + 6 कितना आ जाएगा? 10। Everybody agrees? 10 + 25 how much? 35. Okay, so it's showing you blank screen. Is it clear now? Okay. Okay. So let's continue. 35 + 57, it turns out to be 92. 92 + 64, 60 ऐड करेंगे तो okay, is it 156? 156 + 30 will be 186. 186 + 8 will be 194. 194 + 6 will be 200. अब मुझे बताइए 100 किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगा? 100 will lie between which two values? 100 will lie between which two values? 92 and 156. तो which interval this is? 165 से लेकर 170. ओके, व्हाट इज गोइंग टू बी माई एल? एल क्या रहेगा? 165. 64 will be my frequency. Cumulative frequency is always been taken of the one upper class. So what is the formula of Q2? Q2 is L plus H by
एफ, एल प्लस एच बाय एफ, 2n/4 माइनस सी एफ। तो L कितना है 165, L इज 165 प्लस H कितना आएगा 5, 170 माइनस 165 5। फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी आएगी 64। 2n/4 हमने ऑलरेडी निकाला है 100 माइनस सी एफ है हमारा 92, करेक्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी 165 प्लस 5/64 इंटू 8, 8 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। सो यू विल गेट दिस एज 165 प्लस 5/8, ठीक है। तो द फाइनल आंसर टर्न्स आउट टू बी 165.625। I think everybody has calculators, they can use it. So you got the answer for Q2 as 165.625. So that's your example number 33. Okay. अभी 34 आपको बोला है थर्ड डिसाइल एंड 70th परसेंटाइल। तो सबसे पहले तो डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो सुमित मुझे बताएगा टू कन्वर्ट द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। सुमित रेडी? Sumit, are you ready? Our first job is to convert the data in the ascending order. चलो शुरुआत करते हैं सुमित असेंडिंग ऑर्डर की। सबसे पहले सुमित कह रहे हैं 169, ओके। उसके बाद 225, ओके। उसके बाद 289, यस और नो सुमित। उसके बाद 325 आ रहा है, नहीं 324 आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं सुमित, आप यस और नो में जवाब दे दो सुमित। इसके बाद 324, फिर 325, फिर 400, 625, फिर 729, सभी लोग चेक करते जाना। उसके बाद आएगा 784 एंड फाइनली 841। इज द असेंडिंग ऑर्डर करेक्ट? Is the ascending order correct? Okay. So decile 3. They have told third decile, मतलब D3. D3 will be what? Decile मतलब कितने parts में divide करते हैं हम लोग? Decile means we divide in 10 parts. So this will be value of 3 times n plus 1 by 10th observation, correct? So this is value of 3 times n plus 1 by 10, ओके। तो n का वैल्यू तो 10 है, 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 10 प्लस 1 11, करेक्ट। 3 इन ब्रैकेट 10 प्लस 1 बाय 10 ऑब्जर्वेशन। SP students, you need to answer. SP students, get ready. This will be value of 33 by 10 यानी कि 3.3 ऑब्जर्वेशन। सो ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.3 वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन। SP स्टूडेंट्स बताओ व्हाट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन? SP students, what is the third observation? 289, correct. Plus 0.3, what is the fourth observation? 324.
minus 289. Correct. So this will be 289 plus 0.3. कितना आ रहा है ये? 324 माइनस करेंगे. व्हाट इज दी सब्ट्रैक्शन? 35. सो 35 का 1/3. Okay, so it is going to be how much? 299.5. Correct. That is the value for D3. Correct. That is the value for what? D3. अभी D3 के साथ और क्या बोला है हमें? 70th percentile. 70th percentile. So percentile means you divide the observations in how many parts? 70th percentile, you divide the percentile means how many parts? So this will be what? Value of 70 in bracket n plus 1 by 100th observation. So this will be value of 70 into 10 plus 1, 11 by 100th ऑब्जर्वेशन. तो एक एक जीरो तो कट जाएगा. 77 बाय 70 इंटू 11. ओके, दो दो जीरो कट जाएंगे. कैन आई से इट विल बी 7.7th ऑब्जर्वेशन? SP students, do you all agree? This will be 7.7th observation. 77 by 10 आ जाएगा ना? Yes or no? Okay, so now this will be 7th observation plus 0.7. It will be 8th observation minus 7th observation. 7th observation कितना है हमारा? What is 7th observation? 1 2 3. पीछे से चालू करता हूँ तो 625 आ रहा है प्लस 0.7. 400 minus 625. So this is 625 plus into करेंगे तो ये आ रहा है 72.8. So that turns out to be 697.8. ठीक है, so that is your P70. Anybody having any doubts? SP students, any doubts? Max students, any doubts? ओके, अभी एक फ्रीक्वेंसी वाला फिर से, एक फ्रीक्वेंसी वाला तो बनता है वापस से, लेकिन देखिए ये अभी कंटिन्यूस नहीं है, ये अपना वो नॉर्मल डिस्क्रीट सीरीज ही है. तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए करेक्ट पहले चेक करो क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है. चेक करो, आर दीज इन द असेंडिंग ऑर्डर? सुनील वो देख लेना अभी, दैट इज फाइन. सुनील बोल रहा है इधर 729 है, तो मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? अच्छा सॉरी सुमित. सुनील एक सेकेंड. अभी लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर? 30 35 40 45 50 55. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? सबसे पहले CF वी नीड टू फाइंड व्हाट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो एवरीबॉडी प्लीज बी रेडी. करेगा यार, मुझे चेक करते जाना. एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज ब्रेन वर्क्स फास्टर देन हैंड, तो कई बार चीज़ें जो है थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं, तो ज़रा आप लोग भी मॉनिटर करना ऐसे. ठीक है, तो पहला जो है वो तो क्या रहेगा? 12 ही रहेगा. 12 प्लस 35 विल बी 47. 47 प्लस 10 57.
57 plus 15 will be 72, 72 plus 8 will be 80, ये हो जाएगा 87, 87 plus 8 ये हो जाएगा 95। चेक करो क्या आपका ये भी टोटल 95 है क्या? नंबर ऑफ फर्म्स फ्रीक्वेंसी इज इट 95? यस, ठीक है। अब हमें बोला है D4, D4 डिसाइल 4, डिसाइल 4 मतलब क्या? D4, so D4 will be value of, correct, 4 in bracket n plus 1 by 10th observation, so that is going to be value of, ठीक है, 95 प्लस 1 96, 96 बाई 10 मतलब 9.6, 9.6 इंटू 4, 4 इंटू 9.6 ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है? 38.4, वैल्यू ऑफ 38.4 ऑब्जर्वेशन। मुझे बताइए 38.4 किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगा? 38.4 will lie between which two values? 12 and 47, करेक्ट। तो हमारा आंसर जो रहेगा विल बी व्हाट? 35। फ्रीक्वेंसी वाला 35 नहीं, करेक्ट। ये मैं सर्कल कर देता हूँ वरना कल आप फ्रीक्वेंसी वाला ले लेंगे। दिस इज द आंसर, दैट इज 35, ठीक है। सो यू गॉट D4 एज 35, ठीक है। और क्या बोला है फाइंड करने के लिए? परसेंटाइल 55, percentile 55, percentile means how many parts? Percentile means how many parts? 100, so this will be value of 55 in bracket n plus 1 by 100th observation, so this will be value of, जल्दी से ज़रा मल्टीप्लाई करके बताइए, 55 इंटू 9.6 ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है? व्हाट इट्स टर्निंग आउट टू बी? एक बच्चा बोल रहा है 40, एक बोल रहा है 52.8। ओके, सो 40 फाइनल आंसर है, ओके। तो ये 52.8 ऑब्जर्वेशन, 52 किन दो वैल्यूज के बीच में लाया करेगा? 52 किन दो वैल्यूज के बीच में लाया करेगा? 47 एंड 57, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? लेट मी स्क्वायर विथ ब्लू। आवर आंसर विल बी 40, this will be our answer. So P55 you got the answer as, अभी P55 भी निकल गया। इट विल बी 0.96 इंस्टेड ऑफ 9। मुस्कान देखिए वो ऑलरेडी रेक्टिफाई कर दिया है, मुस्कान, दैट इज ऑलरेडी बीन रेक्टिफाइड, ठीक है। सो 35 इज डन। 36 डिसाइल 9 एंड परसेंटाइल 20, वो भी अभी आपको यहाँ पर कंटिन्यूस क्लास इंटरवल दिए हैं। दे हैव गिवन यू कंटिन्यूस क्लास इंटरवल, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या फाइंड करें हम लोग? व्हाट शुड बी द वेरी फर्स्ट स्टेप? सबसे पहली स्टेप क्या आएगी? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं CF, कुछ लोग बोल रहे हैं n/4। बेटा n/4 क्यों निकालेंगे? डिसाइल और परसेंटाइल है ना, डिसाइल और परसेंटाइल है, तो n/4 हम क्यों निकालें?
पहले सी एफ निकालते हैं जैसे काफ़ी लोग कह रहे हैं. सो लेट मी फाइंड आउट सी एफ. तो पहले तो आएगा 1. 1 प्लस 14 विल बी 15. 15 प्लस 35 50. 50 प्लस 85 135 प्लस 90 235 सॉरी 225. 225 प्लस 15 240. एक बार चेक कीजिए सी एफ बरोबर है क्या. सी एफ बरोबर है. ओके. अब हमें D9 निकालना है राइट. डिसाइल 9. तो डिसाइल 9 के लिए क्या निकालना पड़ेगा. 9n/10. इसका मतलब 9 इंटू 240/10. करेक्ट. दैट इज 9 इंटू 24. करेक्ट. सो इट टर्न्स आउट टू बी हाउ मच. 216. मुझे बताइए 216 मिल रहा है बिटवीन डैश एंड डैश. 135 एंड 225. यस और नो. तो उसको हम बॉक्स कर देते हैं. 216 विल लाई बिटवीन 135 एंड 225. तो इसको मैं मार्क डिक्लेयर करता हूँ. ये किसके लिए हमारा D9 के लिए. ठीक है. अभी दूसरा क्या निकालना है. परसेंटाइल 20 मतलब P20. P20 मीन्स 20n/100. तो 20 इंटू 240/100. ठीक है. तो 0 0 दोनों कैंसिल. 24 इंटू 2 विल बी 48. 48 will lie between which two values. 15 and 50. 15 and 50. So this will be the thing which we should be focused on. ये किसके लिए बेटा. P20 के लिए. ठीक है. एवरीबडी एग्रीज. अभी सभी लोग सॉल्व कीजिए D9. I request everyone to solve D9 by themselves. L plus H by F 9n/10 माइनस सी एफ. मैं गिवन बता देता हूँ. डिसाइल के लिए दिस 80 विल बी L. फ्रीक्वेंसी इज 90. 135 will be your CF and class width is 20. Correct. Quickly find and give me the answer. Okay, majority of the people are getting the answer as 98. Okay, D9 you are getting it as 98. Okay, now please quickly jump to P20. P20 will be L plus H by F 20n/100 minus CF. So L will be 40, F will be 35, 15 will be the CF और H तो 20 ही रहेगा. तीन लोगों का आंसर आ चुका है. Okay. So it is 40 plus
20 by 35, 48 minus 15. Majority of the people are getting 58.85 P20. And these are all the concepts with respect to median, quartile, deciles and percentiles. Harsh, let's take these screenshots. You all can take 5 minutes break. 5:50 हुए हैं, 5:55 को हम स्टार्ट करेंगे. इवन आई विल ड्रिंक वाटर. हर्ष, आप स्क्रीनशॉट ले लो जब तक. Okay, only 34 is pending. Now our next concept is nothing but mode. मोड के बारे में आपको क्या पता है? मोड के बारे में क्या पता है आपको? 10th स्टैंडर्ड मोड हम क्या कहते थे? ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार आता हो हमारे ऑब्जर्वेशन में. मोस्ट रिपीटेड नंबर बोलिए, या मैं बोलूं हाईएस्ट अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम इन द डेटा. यस और नो? कैन आई से दैट मोड? करेक्ट. मोड, सबसे पहली चीज तो मोड को डिनोट कैसे करते थे? एम, फिर बेस में ओ. करेक्ट. मोड हम क्या कहते थे? इट इज द वैल्यू, इट इज द वैल्यू ऑफ the highest occurrence, is the value of the highest occurring item in the data. Highest occurring item in the data. ठीक है. एक डेफिनेशन जो है मोड का ये है. तो मुझे बताइए एग्जाम्पल नंबर 37 में व्हाट विल बी दी मोड? एग्जाम्पल नंबर 37, व्हाट विल बी दी मोड? ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो ज्यादा बार आया है? ओके, सभी लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं? इट इज व्हाट? इट इज 19. मोड इज व्हाट? 19, राइट? क्यों 19 सबसे ज्यादा बार आया है? कितनी बार आया है देखते हैं. ये रहा, एक बार, दो बार, तीन बार. 19 हैज कम 3 टाइम्स. करेक्ट. तो हम क्या बोलेंगे? मोड फॉर द अबाउ डेटा इज नथिंग बट 19. अब ध्यान से, अब ध्यान से. नाउ देयर इज ए स्मॉल ट्विस्ट. ऑब्जर्व दिस एग्जाम्पल नंबर 38. एग्जाम्पल नंबर 38. अब इसमें देखिए क्या होगा. करेक्ट. इन दिस एग्जाम्पल नंबर 38, same data. Observe carefully. Here we have the same data. Same data मैं पेस्ट कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन बढ़ा देता हूं. I am adding one more observation to the given data, 18. अब क्या होगा मोड? अब मोड क्या होगा? What will be mode for these individual series? What will be the mode for these individual series? करेक्ट. एक में तो मोड 19 है,
इसमें मोड क्या रहेगा? 18 19 दोनों। क्यों? इसमें 19 भी बोलोगे, इसमें 18 भी बोलोगे। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ, मोड जो है उसमें ज़रूरी नहीं है आपको हर बार एक ही वैल्यू मिले। करेक्ट, यस और नो? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही वैल्यू मिले। तो जब आपको एक वैल्यू मिलती है तो आप उसे कहते हैं इट इज़ यूनी मॉडल। क्या कहते हैं आप इसे? यूनी मॉडल। जब आपको ऐसे दो वैल्यूज मिले तो आप इसे क्या कहते हैं? बाय मॉडल। लेकिन अगर दो से भी ज़्यादा वैल्यूज मिलते हैं तो आप इसे क्या कहते हैं? मल्टी मॉडल। व्हाट यू कॉल दिस एज? मल्टी मॉडल। करेक्ट, 10 स्टैंडर्ड यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज व्हाट? मल्टी मॉडल। ठीक है, अभी ध्यान से मैं मल्टी मॉडल इधर लिख देता हूँ सो दैट यू रिमेंबर। मोड जो है ज़रूरी नहीं है वो एक ही हो, वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन ये कब है? जब मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज़ है। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 39 में कहूँ व्हाट इज़ द मोड, एग्जाम्पल नंबर 39, व्हाट इज़ द मोड इन दिस? आपको ऑब्जर्वेशन दी है और फ्रीक्वेंसी दी है। व्हाट विल बी मोड इन दिस? करेक्ट, आप कहेंगे सर मोड विल बी नथिंग बट 12। क्यों 12? सर 12 है ना, 10 बार आया है, सो दिस इज व्हाट? दी हाईएस्ट अकरेंस। एवरीबडी एग्रीज? दिवाकर अपना वीडियो बंद करो, काफी देर से साहिल बोल रहा है। ठीक है, वो बेचारा बोल बोल के थक गया, ऐसे परेशान नहीं करो। सीए बनने वाले हो, एक दूसरे में काम पड़ेगा सबको। करेक्ट, वाई वी से इट इज मोड? बिकॉज दिस इज व्हाट? विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। या मैं ये भी बोल सकता हूँ इट इज द हाईएस्ट अकरेंस। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहिए या तो हाईएस्ट अकरेंस। लेकिन आपने 10th स्टैंडर्ड में एक और चीज पढ़ी थी, अगर इसको आप मोड बोलते हो, इफ यू आर कॉलिंग दिस एज मोड, चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ से F1, तो 8 को आप कहते थे F0, 9 को आप कहते थे F2। याद आ रह गया? प्री मॉडल एंड पोस्ट मॉडल। करेक्ट, इसको आप क्या बोलते थे? प्री। और इसको आप क्या बोलते थे? पोस्ट। ठीक है, प्री मॉडल एंड पोस्ट मॉडल, 10th स्टैंडर्ड। यहाँ तक भी ठीक है। देखो क्यों? क्योंकि हमारा मोड जो है अभी भी क्या है? 10 ही है। ठीक है, तो इसको मैं आसानी से बोल दूंगा दिस इज माय मॉडल। करेक्ट, या मोड। अब ध्यान से, अब देखो मोड का आपका दूसरा डेफिनेशन आएगा। एग्जाम्पल नंबर 40 में बताइए आपके अकॉर्डिंगली व्हाट शुड बी द मोड? Example number 40, according to you what should be the mode? करेक्ट, करेक्ट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप बिल्कुल क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? सर मोड विल बी नथिंग बट व्हाट? सर 15। क्यों सर? बिकॉज इट इज द हाईएस्ट अकरेंस। लेकिन नहीं, अब आएगा मोड का दूसरा डेफिनेशन। 15 को अगर मैं मोड मानूं, करेक्ट, क्या आप इसका प्री मॉडल और पोस्ट मॉडल देख रहे हैं? प्री मॉडल क्या होगा? 14, पोस्ट मॉडल क्या होगा? 9। इन तीनों को ऐड करके मुझे बताइए टोटल क्या आता है? इन तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे टोटल क्या आएगा? इट इज 38। लेकिन यही अगर मैं इसको मोड ले लूं, 14 को मोड ले लेता हूं, तो इसका प्री मॉडल विल बी 12 एंड पोस्ट मॉडल विल बी 15। तो इन तीनों का टोटल क्या आ जाएगा? कहना इसे इट विल बी 41। करेक्ट, यस और नो? तो यहाँ पर आपको कहा जाता है कि मोड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है या हाईएस्ट बार अकरेंस होता है। हम मोड को ये भी कहते हैं, मोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज
it is the value of, mode is the value of that item, it is the value of that item where you have higher concentration of frequencies, where you have higher concentration of frequencies, higher concentration of frequencies। देखो इसका मतलब मोड का कोई एक डेफिनेशन नहीं है, मोड का एक डेफिनेशन नहीं है। एक डेफिनेशन क्या बोलता है भाई, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, फिर यूनिक भी नहीं है, मोड जो है हमारा यूनिक भी नहीं है, एक डेफिनेशन भी नहीं है। कल फ्रीक्वेंसीज आ रही है तो हम बोल रहे हैं जहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब आपका मोड क्या हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा ना। डू यू ऑल एग्री विद दिस? आपका मोड क्या हो जाएगा, 16। क्यों? 16 के बाजू में हायर कॉन्सेंट्रेशन है ना फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो इसीलिए हम मोड को कहते हैं दैट इट इज इल डिफाइंड, मोड का कोई एक डेफिनेशन नहीं है। सो मोड इज व्हाट, इल डिफाइंड, मोड इज इल डिफाइंड। इस चीज को हमेशा याद रखना, मोड इज इल डिफाइंड, एक डेफिनेशन नहीं है आपके मोड का, ठीक है। मोड इज इल डिफाइंड, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, दोनों डेफिनेशंस समझने में किसी को कोई डाउट? एसपी स्टूडेंट्स, मोहित आडवाणी, किशन, चलो मोहित ने आंसर दिया, किशन, अनीशा, योगिता, ओके, ठीक है। तो मोड इज व्हाट, इल डिफाइंड। हाँ, ये सब हो गया आपके डिस्क्रीट सीरीज के लिए। आपको पूरे मॉड्यूल में एक ही एग्जाम्पल है, वो है मोड की आपको फॉर्मूला याद रखनी है फॉर कंटिन्यूस सीरीज। क्या होती थी वही 10th स्टैंडर्ड वाली, L1 प्लस F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय, क्या होती थी, F1 माइनस F0 प्लस F1 प्लस F2 इंटू क्या हो जाता था, I, जहाँ पर F0 का मतलब होता था प्री, F1 का मतलब होता था मोड, F2 का मतलब होता था पोस्ट, ठीक है। I क्या होती थी हमारी, करेक्ट, जो भी लेंथ है हमारी, L क्या होता है हमारा लोअर लिमिट। तो ये आपको थियोरी में याद रखना है, यू नीड टू रिमेंबर दिस इन दी थेरोटिकल एस्पेक्ट, ठीक है। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? दिस इज जस्ट फॉर थियोरी पर्पस। एसपी स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? ओके, अच्छा, क्या इसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत पड़ी क्या? डिड वी नीडेड टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? नहीं। सो नो नीड टू फाइंड CF। तो मीन मीडियन मोड में तीनों में से कौन था ऐसा जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती थी? मीन मीडियन मोड में तीनों में से कौन था ऐसा जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत पड़ती थी? मीडियन, ठीक है। मीन डिपेंड्स ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, मीडियन डिपेंड्स ऑन सेंट्रल ऑब्जर्वेशंस, बाकी बचा मोड, वो तो डिफाइंड ही नहीं है, करेक्ट। इट इज व्हाट, इट इज इल डिफाइंड, मोड इज व्हाट, इल डिफाइंड, ठीक है। ओके, अभी हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है, मोड का कुछ यूज नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा सुमित, मैं आपको मोड का यूज भी बताता हूँ। सो सुमित एज अ डाउट, सर मोड का कुछ यूज नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा सुमित, प्रैक्टिकल लाइफ में आप मोड ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुमित ये समझो कि मेरी जो है एक शू की दुकान है। किसकी दुकान है सुमित? सुमित मेरी किसकी दुकान है? शूज की दुकान है। तो मुझे बताओ मैं कौन से टाइप के शूज ज्यादा मंगाऊंगा,
किस नंबर के शूज ज्यादा मंगाऊंगा? जो ज्यादा बिकते होंगे, एवरेज साइज वाले। यस और नो? तो इट इज व्हाट, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मोड यूज कर रहा हूँ ना यहाँ पर। आई एम गोइंग टू गेट दी शूज, करेक्ट, विच इज बीन हैविंग द बेस्ट सेल्स, करेक्ट, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस जिसका सबसे ज्यादा है। तो मोड हम यूज करते हैं, रियल लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्योंकि एल डिफाइंड है तो काफी लोग प्रेफर नहीं करते हैं मोड को यूज करना, ठीक है। मीडियन इन रियल लाइफ, करेक्ट। इंडेक्स नंबर में तुषार आपने मीडियन देखा ही है, करेक्ट। सिंगल पीक वैल्यू, मीन, मीडियन, मोड अभी आएगा बेटा, और भी आएगा। मीडियन भी हम बहुत जगहों पर यूज करते हैं। ऐसे इंटरवल्स तुषार जहाँ पे आप सब ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं कर सकते, करेक्ट, आपको सिर्फ सेंट्रल वैल्यूज ही चाहिए, उस टाइम पर आप मीडियन यूज करते हैं, करेक्ट। विद इन फ्यू लेक्चर्स, 1 or 2 lectures, you will be able to see in how many graphs mean, median, mode are usable। वो हमारा आगे वाला पार्ट है, तो मैं चाहूंगा कि उसे हम आगे ही देखें, ठीक है। So let us go ahead for the harmonic mean। अच्छा, हार्मोनिक मीन बहुत ही इजी है। हार्मोनिक मीन को कई बार ये भी बोला जाता है दैट इट इज इनवर्स ऑफ एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन का उल्टा होता है हार्मोनिक मीन, करेक्ट। एरिथमेटिक मीन का क्या होता है? उल्टा होता है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन जो है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगा। Example number 41. You have been told to find the harmonic mean for the given set of values. Values दिए हैं 1, 2, 4, 8, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन क्या है? अरिथमेटिक मीन का उल्टा। तो क्या कोई मुझे बता सकता है 1 का उल्टा क्या होगा? 1 का उल्टा क्या होगा? अरे 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा ना। 2 का उल्टा क्या होगा? पूजा मैंने उल्टा बोला, ऑपोजिट नहीं। ऑपोजिट विल बी -1। 1 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 1/2, 4 का 1/4, 8 का 1/8। तो अरिथमेटिक मीन अगर आप x लेते हैं तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? 1/x। अरिथमेटिक मीन में आप क्या करते थे? सभी x को ऐड करके डिवाइड बाय n। हार्मोनिक मीन में हम कहेंगे समेशन ऑफ ऑल 1/x डिवाइड बाय n, यानी कि 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 डिवाइडेड बाय n। n कितना बेटा? 4 ऑब्जर्वेशंस। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? ऐड करो, you will get 1.875/4, that turns out to be 0.46875। yes or no? yes or no? ठीक है। अभी ये हमने 1/x का निकाला अरिथमेटिक मीन की तरह। अब मैं आता हूं आपके हार्मोनिक मीन पे। द फॉर्मूला फॉर योर हार्मोनिक मीन इज n अपॉन समेशन ऑफ 1/x, मतलब 4 अपॉन 1/x का समेशन क्या मिला? 0.46875, करेक्ट। लेट मी डिवाइड इट। It is turning out to be 2.133। आप लोग भी चेक कर सकते हैं। It is turning out to be 2.133। ठीक है, सभी को यही मिल रहा है हार्मोनिक मीन। एसपी स्टूडेंट्स, ओ सॉरी मैंने 4 कर दिया। 4 नहीं है बेटा, 1 है। मैंने डिवाइड 1 से किया और ये निकाल लिया। इट विल बी 1 ना, क्योंकि मैं समेशन ऑफ 1/x अपॉन n तो निकाल चुका हूँ ना। तो 1/x अपॉन n का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन आएगा ना, करेक्ट। अगर
this value, if this value is what, summation of 1 by x upon n, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, n upon 1 summation of 1 by x, that is 1 upon this. ठीक है, एनी डाउट्स टू एनीवन? मैं फॉर्मूला को थोड़ा अलग लिख देता हूँ, फॉर्मूला को एक रेड बॉक्स कर देते हैं वरना आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। ये मैंने फॉर्मूला लिखी, एक्चुअली मुझे वो उधर ही ख़त्म करना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं। मोहित आडवाणी, ओके मिला। किशन, अनीशा, एनी डाउट्स? ऐसा एक और एग्जाम्पल देखेंगे बेटा तो चीज़ें और क्लियर होंगी, एक नहीं 2-3 देखेंगे, सो प्लीज़ डू नॉट वरी फॉर दी सेम। अनीशा रुको एक सेकंड में एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, शायद उससे आपको समझ जाएगा। लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। अब मैं आपको x के वैल्यूज देता हूँ। काफ़ी लोगों को हॉरिजॉन्टल समझने में दिक्कत होती है, लेट मी पुट इट वर्टिकल। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 42। सुमित थोड़ा सब्र रखोगे? मैं आपको इधर देखो, इधर आगे आपको एप्लीकेशंस जो हैं इन ब्रीफ मैंने लिख के रखे हैं, दिख रहा है आपको? एग्जाम्पल, एप्लीकेशन, एरोप्लेन वाला एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, फिर इधर वापस से आपको एरोप्लेन वाला एग्जाम्पल दिख रहा होगा। सो बहुत सारे एप्लीकेशन है सुमित, सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। वैसे ये सब आपके फंडामेंटल्स हैं 11th स्टैंडर्ड के, बट क्योंकि फाउंडेशन में है तो मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा खाली सब्र रखिए प्लीज़। ठीक है, एक्स का वैल्यू दिया गया है 15, 25, 40, 50, 80। अनीशा अभी आप ही मुझे आंसर दीजिएगा। सबसे पहले अनीशा क्या करना है आपको, सबसे पहले अनीशा क्या करना है, x का आप क्या फाइंड करेंगे बेटा, 1 बाय एक्स। अनीशा प्लीज गिव मी द वैल्यू ऑफ 1 बाय एक्स। 1 बाय 15 कितना आ रहा है अनीशा? 1 बाय 15 करेक्ट, 0.06, ओके। तुषार हम लोग एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं, प्लीज ध्यान दो तो आपको समझ जाएगा। करेक्ट, एक्स के वैल्यूज दिए गए हैं तुषार, दोज हु गॉट डिस्कनेक्टेड, एक्स के वैल्यूज दिए गए हैं, हम लोग हार्मोनिक मीन निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उल्टा करना है। एक्स का क्या करेंगे, 1 बाय एक्स। अनीशा ने वैल्यू बताइए, 1 बाय 15 इज 0.0666। अनीशा 1 बाय 25। Anisha 1 by 25, she is saying 0.04. Anisha 1 by 40. 0.025। 1 by 50 ये मैं भी बता सकता हूँ 0.02। ठीक है, 1 by 80 बताओ अनीशा। 0.0125। अनीशा यहाँ तक समझा? अनीशा यहाँ तक समझा? ओके। अब हमारी हार्मोनिक मीन की फॉर्मूला क्या है, सीधा वही लगा दो, n अपॉन समेशन ऑफ 1 बाय x। करेक्ट, n कितना है, 1 2 3 4 5, तो भाई 5 डिवाइडेड बाय, अनीशा इसका टोटल देखो क्या आ रहा है, व्हाट इज द टोटल ऑफ ऑल दिस, इन सभी का टोटल देखो अनीशा क्या आ रहा है। अनीशा व्हाट इज द टोटल? जीरो पॉइंट 1635। तो ये वैल्यू अनीशा देखो मैं इधर लिख दूंगा 0.1635। अनीशा व्हाट विल बी द फाइनल आंसर?
नहीं तुषार, वो नहीं किया है मैंने क्लियरली बताया आपको तुषार कि मैंने पहले फॉर्मूला लिख दी फिर आपको सॉल्व करके बताया। तो पहले एग्जाम्पल को देखो तुषार गौर से। 1/x/n समेशन ऑफ 1/x डिवाइडेड बाय n में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका था, तो फिर मैं दूसरी बार क्यों कैलकुलेट करूं। सो दिस विल बी 30.58 अप्रोक्सीमेटली। समझा तुषार। तो इसके लिए फिर मैंने फॉर्मूला को बॉक्स कर दिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है। हनीशा, इज इट क्लियर नाउ? सम नंबर 42। हनीशा अभी क्लियर है? वो हनीशा पहले क्या हुआ ना, मैंने डिवाइड करके निकाल दिया, अब सिर्फ रेसिप्रोकल लेना बाकी था, तो इसलिए दोनों चीजें एक साथ आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं। एक और एग्जाम्पल अभी फ्रीक्वेंसी के साथ, अभी हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 43। सभी लोग ध्यान देना, आई एम गोइंग टू गो वेरी स्लो। एक्स के वैल्यूज दिए गए हैं आपको 12, 15, 18, 20, 25, 30. Frequency given to you is 30, 42, 50, 60, 30 एंड 20। ठीक है, हार्मोनिक मीन विद फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? समेशन अरिथमेटिक मीन में क्या होता था? एफ आई एक्स आई होता था। एवरीबडी एग्रीज? अरिथमेटिक मीन में क्या होता था बेटा? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? इट विल बी समेशन ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाय एक्स आई। डू यू ऑल एग्री विद दिस? उधर इनटू होता था, इनटू का उल्टा क्या होता है? डिवीजन, राइट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? इनटू का उल्टा क्या होगा? डिवाइड होगा ना बेटा। ओके, तो एफ है आपके पास, एक्स भी है आपके पास। अब आपको क्या निकालना है? एफ आई डिवाइडेड बाय एक्स आई। ध्यान दीजिएगा, 4 डिजिट से आगे मत जाना। डोंट गो मोर देन 4 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। करेक्ट, इट शुड बी करेक्ट अप टिल 4 डेसिमल प्लेसेस। तो एक ही जन बताएगा, हनीशा ही बताएगी। हनीशा, टेल मी एफ बाय एक्स फॉर द फर्स्ट वैल्यू, मतलब 30/12। 30/12 2.5। अनीशा, 42/15। 2.8। 50/18। 2.77। 60/20 तो डायरेक्ट आ जाएगा बेटा 3। मैंने जैसे बोला डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस, तो मैं 4 प्लेसेस तक जा रहा हूँ। ठीक है, फिर 30/25। 30/25 1.2। 20/30 0.6666। ठीक है, हनीशा जी इसका टोटल बता दीजिए जरा। व्हाट इज द समेशन ऑफ ऑल दिस? 12.9443। ओके, 12.9443। सो हार्मोनिक मीन एन कितना है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ध्यान से, हाँ ध्यान देना सभी लोग। देयर आर चांसेस, करेक्ट। पहले मैं इधर गलत लिख रहा हूँ, सभी लोग ध्यान देना। फर्स्ट टाइम राइटिंग इट रॉन्ग। अगर आपने गलती से भी यहाँ पर 6/12.9443 किया, तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ दैट वुड बी कंसीडर्ड रॉन्ग।
Anybody who can tell me why it will be considered wrong? Why it will be considered wrong? Because capital N क्या होता है? Capital N क्या होता है? Summation of all frequencies. Yes or no? Capital N is summation of all frequencies. So what is summation of all frequencies? 232. So now we are going for the correct way. This will be 232 divided by 12.9443. What is the answer? What is the answer? It is 17.9229, and that is our harmonic mean. पलक टेक्स्ट कर देना यही चीज, ठीक है. सो दैट इज द वैल्यू फॉर हार्मोनिक मीन. ठीक है, एवरीबडी गॉट द आंसर? एवरीवन गॉट द आंसर? ओके, अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क जो है देना चाहता हूँ, वो आप सभी लोग होमवर्क करेंगे. एग्जाम्पल 44, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 44, इट्स होमवर्क. Value of x are given to you as 20, 25, 40, 50. आपको इसका हार्मोनिक मीन बताना है. Example 44 is homework to you all. You need to give me the answer for the same. ठीक है, Example 44 is homework. आपको हार्मोनिक मीन बताना है इसका. करेक्ट, you need to find harmonic mean. ठीक है. So example 44 is homework to you. ठीक है, तो मैं आपको 5 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि एक सम होमवर्क भी है आपका. हर्ष, दोनों स्क्रीनशॉट हो चुके हैं बेटा? हर्ष, ओके. सो वी विल स्टॉप हियर. ठीक है, एक समय आपको होमवर्क है, कल आपको उसका आंसर देना है. ठीक है, और जितने भी फॉर्मूलाज, हाँ जिनको आ गया बहुत ही अच्छी बात. करेक्ट, जितने भी फॉर्मूलाज किए एक बार रिवाइज कीजिएगा, सो दैट वी कैन गो अहेड. ठीक है, सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर यू ऑल स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ग्रेट इवनिंग अहेड. थैंक यू.